ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ଷ୍ଟଡି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 1 କୋର୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 1 ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଏହାକୁ ରଚନାକାଳ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା କହିଲେ ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ କୁ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗଳାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହା 50 କୋଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ସର୍ବପଦମ ଦୟାକୋଷ, ଗଣପଦମ ଦୟାକୋଷ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଡାକାର ନବ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୁହେଁ କେବଳ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବା କଥା ସେମାନେ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତି ଏବଂ ଦୋହାକୁ ବୁଝାଏ। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 1907 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗଳାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ଏବଂ ଗୀତି ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକାର ନବ। ତାପରେ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ନାମକରଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗିଚି ନିଜର ନେପାଳ ରହଣୀ କାଳରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗୀତି ଓ ପୋଥି ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପ୍ରଥମ ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଗୀତିରେ ଥିଲା ତିଳୋପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୀତି ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ହେବ ହେମରାଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନେପାଳ ଦରବାରର ପାଠାଗାରରୁ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଲେଟର୍ସରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ନାଲ ଲେଟର୍ସରେ ପରେ 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ସିରିଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୋହାକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଂକୃତ୍ୟାୟ ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ପୋଥିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ତିବ୍ଦତର ଶାକ୍ୟ ବିହାରରେ ଏବଂ ଏହାକୁ 1957 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ
यह पाटना स्थित बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा यह प्रकाशित होता। लुप्त पठोद्धार यदि आम देखा ताले यही चर्चा साहित्य आमे आलोचित एवं जो मैंने नोट लिखा कथा जो पॉइंट गुड़िक रहा कथा से गुड़िक हूँ प्रथम लुप्त पठोद्धार टीका, चर्जार गठन रीति, चर्जार आविष्कृत गीति और पोथीर नाम एवं सरह जो आम 84 सिद्ध जी यहाँ रचना करते जीवनी ये प्रथम आम जब देखा ताहले लुप्त पठोद्धार बा टीका मुखपदे हरप्रसाद शास्त्री जितेबाला चर्चा गीतिकसर पुष्पिका सहित 3.5 गोटी चर्चा संख्या 24, 25, 23 एवं 48 संख्यक गीति रचना करते सेगुड़िक से उद्धार करते सेगुड़िक किसी नथिला संख्यक गीति से नथिला किंतु परवर्ती काल में डॉक्टर प्रभचंद्र बागेजी से अज्ञात अंशटी को तीर्थती ग्रंथर उद्धार करते जहाँ कि लुप्त पठोद्धार बा टीका से तार पठोद्धार करते प्रभचंद्र बागेजी एवं पठोद्धार करने पर से एक संस्कृत टीका संपृक्त थिबार जनाए। परवर्ती मुहूर्त में से संस्कृत टीकाकार नाम मुनिदत्त बोली जना पड़ा जी कि जड़े चर्चा गीतिर रचयिता थे। नेपाल जदि आम देखा नेपाल चर्चा गीति एवं चचा गीति नाम परिचित अटे। तापर आम जो देखा चर्चार अर्थ कौन मूलगत चर्चार अर्थ कहले आचरण एवं आचार को बुझाई था मूल अर्थ किंतु आम भावुते यह साधारण आचार बा आचरण नुहे यह जोग साधन संपर्कित आचार एवं आचरण जहाँकि से समय बौद्ध सिद्धाचार्य माने निजर जोग साधनार अभिज्ञता गुड़िक वर्णना कहले भी अत्युक्ति हेनी। यह साहित्यिक माने भी मत प्रदान करते। जदि आम देखा तंत्र साधनार श्रेणी विभाग को मध्य चर्चा कहुए एवं विद्या अध्ययन एवं समीक्षा को मध्य चर्चा कहुए। तापर आम जो देखा प्राक काल एक गीति और रीतिर नाम थिला चर्चा चर्चा बा चर्चा गीति ये गुड़िक जो रचना होता यह गठन रीति। एवं आसवा आम जो देखा आम लुप्त पठोद्धार टीका गला चर्जार गठन रीति गला एवं चर्जार गठन रीति सरी से चर्जार अर्थ किंतु यह हूँ चर्जार गठन रीति जोटा मुझे कहबी चर्जार गठन रीति आंगिक गठन रीति दृष्टि जब विचार करवा तब 6 गोटी गीति आविष्कृत होता सरी 50 गोटी गीति मध्य 6 गोटी गीति व्यतीत अन्य जो 50 गोटी गीति से 10 पाद युक्त एटारे गोटे सर्ट टाइप क्वेश्चन भी आसबरी जे आंगिक गठन रीति दृष्टि चर्चा 50 गोटी गीति केते पाद युक्त तेबे यार उत्तर होउछि 10 पाद युक्त एवं एठारे जब देखा आम चर्चार गठन रीति जो 6 गोटी गीति रही से गुड़िक मध्य 3टी 10, 28, 50 थिला 14 पाद विशिष्ट एवं 21 और 22 थिला 12 पाद विशिष्ट एवं 43 थिला 8 पाद विशिष्ट। ये जो
छटी रही यही छटी मध्य द्वितीय पदटी ହେଉଛି खूब महत्वपूर्ण। द्वितीय पदटी खूब महत्वपूर्ण होइथिबारु यह ध्रुव पद अटे। द्वितीय पदटी खूब महत्वपूर्ण एवं यह ध्रुव पद अटे। शेष में आम जो देखा प्रत्येक शेष यार पुनरावृत्ति घटे। एथुरु जना जाए जे प्रत्येक पद शेष में जनक द्वारा सोलो गीत होउनथिला बा जनक द्वारा गान करा जाउनथिला, व्यक्ति द्वारा गान करा जाउनथिला। कान्ह पादंकर चर्चा संख्या 10 रे द्वितीय पदटी भणितायुक्त एवं शेष पदटी भणिताहीन अटे। यह द्वितीय पादर मध्य वैशिष्ट्य प्रतिपादन करुछि। ये तो थिला चर्चार गठन रीति। एबे आसीबा आविष्कृत गीति और पथिर नाम। बौद्ध गान और दोहा पुस्तक रे पंडित महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 50 कोटी गीति विशिष्ट ग्रंथटीर नाम रखिथिले चर्चा विनिश्चय। यह डॉक्टर प्रभोद चंद्र बागेची मध्य स्वीकार करथिले। किंतु टीका अनुसार प्रभोद चंद्र बागेची तिद्धति अनुवाद अनुसार ग्रहण करने सहित से निज ग्रंथटीर शुद्ध नाम रखिथिले चर्चा विनिश्चय। किंतु बौद्ध गान और दोहा पुस्तक श्री विधुशेखर शास्त्री पद प्रकाश करती जे ग्रंथटीर शुद्ध नाम हेउछि चर्चाचर्य आश्चर्य चर्चाचर्य। मात्र डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह बुद्धिस्ट माइकासिक सॉन्ग्स रे मध्य जदि ग्रंथटीर शुद्ध नाम करुछंती तेबे से मध्य तांको पुस्तक रे से रखुछंती जो आश्चर्य चर्चाचर्य शब्दटी एवं एहाकू विरोध करती से विधुशेखर शास्त्री विरोध कर कहती जे आश्चर्य शब्दटी मात्र विशेषण अटे। फरासी पंडित पी करिडर मतरे मुनिगतर रचित कोशवृत्ति चर्चा गीति कोशवृत्ति अनुसार यार नामकरण करने ग्रहण करने अधिक संगत विधि संगत अटे। किंतु यार नामकरण करछन्ति से मध्य चर्चा पद नाम रे नामकरण करछन्ति। किंतु यह डॉक्टर मनीन्द्र मोहन बासुंक मतरे रचित होइतो ग्रंथटीर नाम हेउछि चर्चा पद। कारण जदि आमे देखिबा प्रबोध चंद्र बागेची मध्य कहिथिले एवं नूतनतः कहले जे चर्चा गीति बोली स्वीकार करबा यथार्थ अटे। कहीं आमर जदि आमे देखिबा जे चर्चा गीति केतोटी पद रहिछि सेगुड़िक संस्कृत टीकार मध्य केतोटी पद रहिछि। एही नाम को यथार्थ मने करी डॉक्टर ताराप्रद मुखार्जी निज आलोचना ग्रंथ रे एहार नाम रखिछन्ति चर्चा गीति। डॉक्टर सुकुमार सेन मध्य एहाकु ग्रहण करिछन्ति। मात्र डॉक्टर खगेश्वर महापात्र एहाकु चर्चा गीतिका बा नाम रे नामित करिछन्ति। प्रश्न आसीबो डॉक्टर खगेश्वर सब क्वेश्चन डॉक्टर खगेश्वर महापात्र निजर रचना रे चर्चा गीति गुड़िक कौन नाम देते चर्चा गीतिका। उत्तर होइछे चर्चा गीतिका। एबे आसीबा ये तो गल दिला चर्चा आविष्कृत गीति और पोथीर नाम। किंतु एबे आसीबा हम 84 सिद्ध। आमे 84 सिद्ध कहले कौन बुझु? बौद्ध गान बा बौद्ध सिद्धाचार्य माने जो माने थिले चर्चा गीतिर स्रष्टा से माने होछन्ति 84 सिद्ध। 84 जन सिद्धाचार्य यह रचना करथिले। आविष्कृत पोथी स्थानित होइथिबा 50 कोटी गीति को परंपरा को जो माने नोट करिया कथा कर जे आविष्कृत पोथी स्थानित होइथिबा
50ଟି ଗୀତି को चर्चा गीति गुड़ी जो यही चर्चा 50 कोटी गीति चर्चा गीति गुड़ी को मात्र 23 जन सिद्धाचार्य रचना करते कान्हुपादंकर थिला बेस अधिक संख्यक चर्चा जोटा कि 13 जन 84 सिद्धाचार्य रचना करते से गुड़ी को मध्य थे सरहपाद जो माने कि जी की जो आम देखिए सिद्धाचार्य माने होउछन्ति सरहपाद कान्हुपाद डुम्बिहेरिक बिणापा शांतिपा शालीपा एवं तंतीपा जलंधरी पाद इत्यादि गुड़िक सिद्धाचार्य माने रही यही नाम अनुसार सिद्धाचार्य माने रही यदि गुड़िक मध्य सरहपादंकर चर्चा संख्या थिला 32 38 और 39 ठीक से सबरीपाद मध्य 24 और 25 रचना करते कुकुरीपाद जी की सी रचना करते 2 20 48 टी चर्चा संख्या रचना करते यही क्रम आम जो देखा जे सिद्धाचार्य सिद्ध कवि मानकर जो तालिका रही असंपूर्ण अटे कारण स्थूल भाव में एक विस्तृत काल पटभूमिकार ख्रीष्टीय सप्तम रु 12 शताब्दी मध्य अवस्थापित करने यथार्थ अटे एवं यही समय मध्य साहित्यटी रचना होइतिबार सूचना ऐतिहासिक और साहित्यिक माने जहाँकि प्राक सारला पूर्व अंतर्भुक्त अटे किंतु एगुड़िक मध्य आम प्रायतः लक्ष्य करवा गोटे कथा ये समस्त नाम पर पा बा पाद शब्द व्यवहार होची पा बा पाद शब्द कौन जो नोट करने कथा ये करतु जे प्रत्येक सिद्धंक नाम शेष प्रयुक्त पा बा पाद शब्द अपभ्रंश भाषा रही जार अर्थ होची महामान्य कान्हु महामान्य सरहपाद महामान्य जलंधरीपाद महामान्य डुम्बिहेरिक महामान्य सबरीपाद सरहपाद कान्हुपाद इत्यादि गुड़िक से आम जीवनी एवं देखा सरहपाद जीवनी जो नोट कर भल यहाँ सरहपा आदि सिद्धाचार्य अटंती सरहपा आदि सिद्ध भाव में परिचित तालिका अनुसार ओडिशार अधिवासी बोली चला जाए किंतु पाकसाम जोन जाओ अनुसार रागी नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले बोली पूर्वांचल रागी से स्थान नाम रे जन्म ग्रहण करथिले बोली तांको पिता थिले जने ब्राह्मण एवं माता थिले जने डाकिणी तांकर बाल्यकाल नाम थिला राहुल भद्र किंतु से राजा चौबीसु कल्पंक द्वारा मंत्रजान में दीक्षित होगा पर अनेक अलौकिक शक्तिर अधिकारी होते मात्र राजा द्वारा मात्र निजर अलौकिक शक्ति बल से राजा रत्नपाल एवं तांकर जड़े ब्राह्मण मंत्री मानक निजर मंत्रजान में दीक्षित कराइथिले बोली तिद्दुति सूत्र आम प्रकाश पाई आम जापर एवं यह कर सारा पर से नालंदारे जे शिक्षादान करथिले नालंदारे तो शिक्षादान होइतिले से समय प्रथम विश्वविद्यालय भाव में नालंदा ही केवल थिला जोठारे कि बहुत शिक्षादान करा जाउथिला ताहा आज नाही नालंदा किंतु एही नालंदा रे से शिक्षादान करथिले पर राजा जो पर से महाराष्ट्र को जाए जन सरदेव माता कन्या को विवाह करते से सर्वदा सरहस्त हो बुलुथिबारु नाम एपरि होइछि बोली सरहपाद होइछि बोली से माने एहाकु ऐतिहासिक साहित्यिक माने मत प्रदान करते टांगुर जो आम यह कहले टांगुर रे स्थान पाई केतोटी चर्चा संख्या 22 32 38 एवं
59 बा 45 टी चर्या संख्या तांकर रचनागार रखाଯାଇଛି एवं ताको अष्टम शताब्दी अवस्थापित कराइबा यथार्थ अटे कारण अष्टम शताब्दी तांकर जड़े शिष्य जी कि नागार्जुन थिले से समय रे जीवित थिबार सूचना मिले और से श्रीपर्वत को निजर साधना पीठ भाव में रखिथिले नागार्जुन पर ताहा नागार्जुन कोंडा नाम रे मध्य नामित होइतिला। सबरपा बा सबरीपा नाम रे मध्य परिचित से जाति रे जने सबर थिबार तांकर एपरि नामकरण होइछि किंतु से निजर दुई पत्नी लोकी और गुणी को राजा नागार्जुन जो नागार्जुन पादों ठारू से मंत्रजान दीक्षित होते जो मैंने आम देखिए सबरीपाद दुई पत्नी चर्चा गीति नाम हो ज्ञानवती एवं पद्मावती क्रमन्वय तेरे एटारे गोटे प्रवाद रही निजर सहोदरा भग्नी को मुद्रा रूप में ग्रहण कर जन सम्मुख निंदित होते से पाकसाम जोन जाऊ अनुसार आम से देखा जन्मस्थान थिला बंगलार जन एक सबर परिवार से जन्मग्रहण करते किंतु महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिसाब से जड़े क्षेत्रीय भाव में विक्रमशाली अधिवासी हिसाब से रही सूचना प्रदान करते दुई जन शिष्य रही प्रथम जो तांगुर तालिकार में सूचना पाओ जे जोगीपा और सर्वभक्ष्य पा नाम दुई जन शिष्य रही को खंडन करी डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य कहती जे 657 ख्रीष्टाब्द अवस्थापित करने यथार्थ अटे एवं से राजा धर्मपाल समय सामयिक थे चर्चा गीति कोशस्थ 28 और 50 संख्यक चर्चाद्वय तिब्बती ग्रंथ स्थानित हो लुईपाद अधिकांश तांत्रिक परंपरा रे लुईपाद प्रथम शिष्याचार्य पाकसाम जोन जाओ अनुसार से उड़ियानर बा आधुनिक नाम ओडिशार एक कैवर्त परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले ताको नाम सेताले थिला सामंत शुभ मात्र तारानाथ विवरण अनुसार से उड़ियानर राजा पश्चिमांचल राजा सामंत शुभ को राजदरबार लिपिकार भाव में मध्य नियुक्त थिबार सूचना मिले से सबरीपाद शिष्य थिले एवं महाजोगेश्वर नाम मध्य ख्यात थिले बोली सूचना मिले तिब्बती सूत्र आउ एक जदि आम देखा तांकर उपरे लुईपादों उपरे से दीक्षा ग्रहण करबा परे मंत्रजाल रे दीक्षित होबा परे बंगला को जाई सेठारे गंगा नदी कूल रे वज्र प्रवाही मंत्र जप करथिले एही मंत्र जप करबा फल रे से किछि मत्स्य भक्षण करबा परे से साधना रे सिद्धि प्राप्त होइथिले कथा वर्णना रही अछि डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य 629 ख्रीष्टाब्द अवस्थापित करती किंतु राहुल सांकृत्यायन समय रे से ख्याति अर्जन करथिले 768 रु 809 ख्रीष्टाब्द मध्य इति थिला तांकर रचना गुड़िक मध्य थिला जो गुड़िक से निज रचना करथिले से गुड़िक थिला प्रथम एवं 29 चर्याद्वय संख्यक चर्याद्वय से रचना करथिले ठीक से कानुपाद जेपर एई समस्त मध्य कानुपादंकर जीवनी बेस चिताकर्षक लगे एतरे कोन रहिछि ना सिद्धाचार्य कानुपा कृष्णाचार्य बा कृष्णपा नाम रे मध्य ख्यात थिले सिद्धाचार्य जलंधरी पादंकर से शिष्य थिले से ओडिशार ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले बोली
ତେଙ୍ଗୁରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାରିଜଣ କାହ୍ନୁପାଦ, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ବା କଥିତ ଦିବାରେ ଏମିତିରେ ବହୁତ କାହ୍ନୁପା ସେଇ ଟାଇମରେ ଥିଲେ ବୋଲି, ସେ ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାହ୍ନୁପା ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତିବ୍ଦତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚନା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କୁହେଳିକା କାହାଣୀ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜା ଦେବପାଳଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସୋମପୁରୀ ଠାରେ ସେ ଗୁରୁ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦ କାହ୍ନୁପା ଅଭିଷେକ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ବଳାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅହଂଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅହଂଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତିପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ତନ୍ତିପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଏକ ରକ୍ଷିତ ରମଣୀ ଉପରେ ସେ ନିଜର ସାଧନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସାଧନ ଶକ୍ତିଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହ୍ନୁପାଦ ବହୁତ ପୀଡ଼ାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଜ୍ରବରାହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପୀଡ଼ାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଇଏ ଥିଲା କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଟପିକ ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଇଏ ଥିଲା 84 ସିଦ୍ଧଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସାନ୍ଧା ଭାଷା ବା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ସାନ୍ଧା ଭାଷା, ସାଧା ଭାଷା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଯେ ସାନ୍ଧା ଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ର ଅବା ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏପରି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟଟି ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆଲୋକ ପରି ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ପରି ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବଙ୍ଗାଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଫେସର ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ପ୍ରଦାନ କରି କହନ୍ତି ବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ରହିଛି ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ବା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କାପାଳି। ଏଠାରେ କଣ ସିମ୍ପଲ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହ୍ନୁ ଆଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି କାହ୍ନୁ କାପାଳି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁହ୍ୟାର୍ଥଟି ଅଲଗା। ଶାଶୁ ବା ଶ୍ୱାସ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖ୍ୟାତ ବା ଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ଯଥାକ୍ରମେ ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି। ଏହି ତିନି ନାଡି ମଧ୍ୟରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନାଡି। ସାଧକ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଏହି ତିନି ନାଡିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିପାରିବ, ତେବେ ସାଧକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। କାହ୍ନୁ ଏହି ତିନି ନାଡିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପରେ ସେ ମା ରୂପକ ମାୟାକୁ ଜୟ କରି କାପାଳି କହେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦଟେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ୟାର ବାହାରିବ।
ठीक से समय चर्चाकार माने एहीपरि भाव चर्चा साहित्य को लिखन करथिले जहाँ केवल आम ओडिया साहित्य पाई नुहे एक समग्र भारतर साहित्य पाई एक नूतन आदर्श भाव में परिगणित होता नूतन लेखक मानक पाई एक नूतन स्वरूपर रास्ता खोली ये तो थिला चर्चा साहित्य पुणी देखा द्वितीय परिच्छेद बा यूनिट 2 को आम पुणी थे वीडियो तैयारी करवा जदि यूनिट 2 रो भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।